ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಕ್ಷ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಬಹಳ ಮೊದ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, 3ನೇ ಸಲ 4ನೇ ಸಲ ಇದು. 3 ಸಲ ಈಗಾಗಲೇ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇದು ಬರೇ ಅವ್ರು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮತ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ಕೋತಾರ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಇವ್ರರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನಾಯನ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರ. ಇವು ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ನಿಲುವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೈಂಡ್ ಮನುಷ್ಯ ಅದಾರ. ಅವ್ರ ಯಾಕಡೆ ಮೈಕ್ ನಿಮ್ ಲೋಗೋ ಹೋಯ್ತಂತ ತಿಳಿರಿ, ಏನ್ ಬಾಯಾಗ ಬರ್ತದ ಅದ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ. ಅದರಿಂದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅದಾರ ಹೊರತು ಜನರೊಳಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ 6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಆಗತ್ತದ್ರಿ ಬಿಜಾಪುರ ಒಳಗ. ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ನಮಗೇನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರ ಅವ್ರು ನಮ್ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ಸಮಾಜದವ್ರು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ಮುಖಂಡರು ಅಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕ. ಯಾಕಂದ್ರ ಅವ್ರು ನಮಗ್ ಬೇಕಾದವ್ರು ಬೇಡದವ್ರು ಇರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರೇನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನೊಳಗ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಜನ, ಯಾಕಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬಯಸುವಂತ ಜನ ಅದ. ಬಿಜಾಪುರ ಜನ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜನ ರೀ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆ ಜನ, ಸೂಫಿ ಸಂತರ ನಾಡು, ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಡು, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ನಡೆದಾಡಿದಂತ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾವೇನ್ರಿ? ಇದು ಬಹಳ ದಿವ್ಸ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ. ಅಷ್ಟು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇತ್ತಂದ್ರ ನಾ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ದಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವ್ರಿಗೆ ಜಿದ್ದಿಗೂ ಹೋಗ್ತೇವ್ ನಾವು. ಅಲ್ರಿ, ಹಾದಿ ಬೀದಿ ಒಳಗ್ ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಪಕ್ಷನ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯ ಇರ್ತಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ವಿಜೇಂದ್ರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಆ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಯೋದು, ಈ ಕಡೆ ಈ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಯೋದು. ಅವ್ರ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದವ್ರಿ. ಅವ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಒಳಗ ಒಬ್ರು ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಲ ಒಳಗ ಅವ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಟ್ಟಿದವ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಬೈಯುದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೈಯುದೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಒಳಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ಗೂ ಬೈಯುದೆ, ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗೂ ಬೈಯುದೆ. ನಾ ಬಾರಿ ಅನ್ಕೋತ ಇವ್ರಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲಾರು ಬಿದ್ರು ಇವ್ರು. ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಇವತ್ತ ಬಿಜಾಪುರ ಒಳಗ 3-4 ಬಿಜೆಪಿ MLA ಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಗೊತ್ತದರಿ? ಬಸವನ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಬೆಳ್ಳುಬಿ ಅವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ದೇವರಪ್ಪರಿಗೆ ಸೋಮನ್ ಗೌಡ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಸಿಂದಗಿ ಒಳಗ ಬುಸ್ನೂರ್ ಅವ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಿಮ್ಗ ನಡಹಳ್ಳಿ ಅವರು ಮುದ್ದೆಬಾಳಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಇವ್ರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವ್ 4 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಿದ್ದಾವ. ನೀವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಪಕ್ಕ ಹೇಳತ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ ಮುಸ್ಲಿಮ್ರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು, ಹಿಂದೂಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇವ್ರು ಬರಾನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ರು ಒತ್ತಾಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ರ ಜನರು ಹಾಕಿದ್ರು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು. 1 ವೇ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆತ್ರಿ. ಸೂಪಡ ಸಾಪ್ ಇವ್ರು ಒಬ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರೇ ಉಳಿದಿಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಒಳಗ. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಇದ್ರ ತಮ್ಮ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 4 ಮಂದಿ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು, 6 ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವ್ರ ಅಷ್ಟು ದಮ್ಮನ ಲೀಡರ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ರ 4 ಮಂದಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇಕು. 4 ಮಂದಿಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಒಬ್ರು ಬಂದಾರ. ಅದು ಏನೋ ತಿನ್ಕಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಓಟ, ಅಲ್ಲಿ ಶೇಡಂ ಓಟ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಬೀದರ್ ಓಟ, ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಓಟ್ ತಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ಯಾರ. ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಯಾರೇನ್ರಿ? ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಯಾರ ಆಗ್ತಾರ್ರಿ? ಅಂತವ್ರೆಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ ಆದ್ರ ಏನು ಜಗತ್ ಪ್ರಳಯ ಆಗ್ತದ. ಇಲ್ಲೇ ಒಣ್ಯಾಗ ನಾಯಕ ಮಾಡ್ಕೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿಯೋದು, ಏನಾರ ಮಾತಾಡೋದು, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹುಯ್ 4 ಹುಚ್ಚ ಹುಡುಗರು ಹುಯ್ ಮಾಡ್ತಾವ. नाने हुली हिंदू हुली मारते। जो कल खबर आई है कि यत्नाल पाटिल को बीजेपी से निकाला गया है, मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों की सिर्फ पार्टी में ही नहीं, इनको समाज से भी बहिष्कार करना चाहिए। क्योंकि जो इंसानियत को बांटने की बात करता है ना, उससे किसी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा पहुंचता है, न किसी समाज को, न किसी समाज विशेष को। ये हम सबको समझने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों से सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो पॉलिटिकली पार्टी हो, क्या वो समाज विशेष समाज हो, या कोई आम जनता हो,
ऐसे लोगों की सोच से, ऐसे लोगों की मानसिकता से समाज को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। तो बीजेपी ने एक अच्छा फैसला लिया है और ये पहली बार नहीं है। इनको तीसरी मर्तबा, शायद तीसरी मर्तबा पार्टी से निकाला गया है और ये बेशर्म है। मुझे नहीं लगता कि ये वापस बीजेपी में नहीं जाएंगे। ये बेशर्मों की तरह फिर से, ये तो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। वो एक मुहावरा भी है, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। इनकी मिसाल इसी तरह है। इनको सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से मतलब है, ये अपनी बातों पर खरे नहीं उतरते। अगर इनके अंदर थोड़ी भी नैतिकता, थोड़ी भी शर्म, सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है तो मैं इनको चैलेंज करता हूं। आपके माध्यम से मैं इनको, बसवनगौड़ा पाटिल को, यत्नाल को मैं चैलेंज करता हूं कि ये बीजेपी में न जाएं और खुद की एक पार्टी बना करके बीजेपी को और कर्नाटक के सारे रहने बसने वालों को, अवाम को, ये अपनी ताकत का मुजाहरा करें। देखें कि इनके साथ में कितने लोग जुड़ते हैं, कितने एमएलए आते हैं, ताकि बीजेपी पार्टी को भी पता चले कि इनकी कितनी बड़ी ताकत है, ये क्या चीज है, हम लोगों को भी समझ में आए। पार्टी के पीछे रह करके किसी भी समाज विशेष को गाली देना, एल फैल बोलना, ये बड़ा आसान सा काम है। ये बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। अगर इनके अंदर नैतिकता है तो ये पार्टी, इनको तो पार्टी ने निकाल दिया है, उच्चाट ने कर दिया है। ये खुद भी पार्टी छोड़ने का ऐलान करें और नई पार्टी का गठन करके दिखाएं। अगर इनके अंदर हिम्मत बाकी है, इनके अंदर अगर नैतिकता है तो ये मेरा इनको चैलेंज है। बसवनगौड़ा पाटिल, अगर तू सुन रहा है तो हाफिज सिद्दीकी तुझे चैलेंज कर रहा है। तू अपने अंदर, अगर तेरे अंदर जरी भी गरिमा बाकी है, इज्जत बाकी है, तो तू मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर। ये नहीं सोच के ये चैलेंज करने वाला कौन है, क्या है, ये चैलेंज क्या है उस पर गौर करते हुए तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान कर। सर, आप बसवनगौड़ा पाटिल को पार्टी बनाने के लिए चाहिए, क्या आप उन पार्टी में चाहिए? देखिए, पहले तो ये सवाल ही सही नहीं है। उसने खुले अल्फाज में कहा है कि मुसलमानों को उसके दरवाजे पर आने की जरूरत नहीं। तो मैं टोपी दाढ़ी के साथ साथ मुसलमान भी हूँ और दाढ़ी टोपी भी रखता हूँ, तो मेरा तो जाना सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कही हैं जो आप सब लोगों को पता है। आपके माध्यम से, मुझे कोई पार्टी से निकाल नहीं सकता, अगर मुझे निकालेंगे तो पार्टी डैमेज होगी। अब पार्टी ने उसे लात मार करके 6 साल के लिए उच्चाटने कर दिया है, पार्टी से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी बारी है कि वो अपने अंदर कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है, उसके अंदर क्या एबिलिटी है, उसके साथ कितने एमएलए जुड़े हैं, उसको दिखाने की जरूरत है। वो आकर के दिखाए। तो सिर्फ एमएलए इतना नहीं, सिर्फ अकेले नहीं, जो अभी से और भी कई लोगों को, जो और भी 5 एमएलए, उन्हें भी एक नोटिस दी गई है बीजेपी के द्वारा। वो निकालने की बात नहीं कर रहे हैं, उनको शिस्त के लिए बात कर रहे हैं। वो ऐसा हुआ है, आर्डर कोई इशू हमारे पास सामने नहीं आया है, जब आएगा उस पर बात करेंगे। सर, जो बसवनगौड़ा पाटिल को जो 5 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है, 6 तो 6 साल के लिए, 5-6 साल के लिए जो उन्हें निकाला गया है, क्या आपको क्या लगता है कि बसवनगौड़ा की क्या ताकत खत्म हो जाएगी? उन्हें एक एमएलए, एक केंद्र मंत्री, उसकी क्या ताकत है रहने वाली? बीजेपी की जो ताकत थी वो चली गई उसके साथ। तो पीछे में बैक अभी उसका क्या ताकत है, वो ताकत का मुजाहरा वो करना चाहिए। उसके में ताकत बाकी है तो बीजेपी से जब निकाला है तो बीजेपी पार्टी को ये भी खुद छोड़ना है। बीजेपी को एमएलए से जो बीजेपी सिंबल पे चुन के आया है ना, वो छोड़ के पक्षेतर या दूसरे और पार्टी से चुन के आके दिखाए। ये हमारा भी चैलेंज है इसमें। क्या इतना लोग पार्टी से उच्चाट नहीं करें, इसमें क्या इस बार क्या मुस्लिम कैंडिडेट का पता होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं है। ये यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी, ये कभी भी उस्ताद साहब के टाइम से फाइट चलती आ रही है। ये कई बोगस वोटों से, कई धांधलीबाजी से, कहीं अपने मुफाद के लिए हिंदू मुस्लिम के तौर पर, ये सब गलत पॉलिटिक्स की वजह से ये सब हो रहा है। नहीं तो यहाँ पे अच्छे लोग ही चुन के आए हैं। ये सूफी संत और हमारे बसवण्णा का नाड़ है, यहाँ पर गलत लोग आने का चांस ही नहीं है। ये 10 साल तक, 5 साल तक ऐसे लोगों का रहता है।
लोगों को अच्छा पता चलना, बोले तो बुरा क्या है मालूम चलना चाहिए। तो ये बुरा था, इसके बाद अच्छा आएगा जरूर। अभी कल उनको उच्चारण है कि ऐसे ही खबर आई एक हिंदू लोगों में ही बीजेपी के कई कार्यकर्ता थे, उन्होंने मिठाई खिलाकर, मिठाई पूरे बीजापुर में, बल्कि एक दो जगह भी नहीं, पूरे बीजापुर में ऐसे मंदिरों में जाकर पूजा करना, बीजेपी है कमांड वाले स्वागत करने की भी बात है। ये बड़ी शर्म की बात है बसवनगौड़ा पाटिल के लिए। ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। उनके ही पार्टी के सीनियर लोग, ये कोई आम लोग नहीं है, ये तुम्हारे उमेश वंदाल, शिव बिहार, ये महानगर पालिका के सदस्य थे, ये एक्स स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे उमेश वंदाल। अगर ये खुद जब एक सिटिंग एमएलए के खिलाफ मिठाई बांट रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, तो ये बसवनगौड़ा पाटिल के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। और मुझे पूरा यकीन है कि इनको इतने से शर्म आने वाली नहीं है, और ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाले तो नहीं है, इनको शर्म तक नहीं आएगी। मुझे पूरा यकीन है इनके ऊपर, क्योंकि ये बेशर्म है और इनकी बेशर्मी की कोई हद नहीं है। हर चीज से ये गुजरने के लिए तैयार है, इनकी कोई हद नहीं है बेशर्मी के। उनके समाज के मुखंडों द्वारा भी बसवनगौड़ा के शहर में भी कई प्रतिभटना, जैसे कि भागेवाड़ी में प्रतिभटना की है, बीजापुर में भी प्रतिभटना करने की जो है मीटिंग भी चली हुई है, बड़े पैमाने पर एक प्रदर्शन भी होने जा रहा है उनके केवल इस पार्टी में निकालने के बाद, एक पार्टी को जो एक खुली चेतावनी देने की। वो सब चलने वाला, क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर है, उतने तो समर्थक रहते थे क्या, कहाँ भी प्रतिभटना करना बोल को। जब पार्टी से निकाला गया है तो उसके समर्थक, उससे फायदा लिए हुए लोग, उतने छोटे मोटे चुटमुट हो जाएगा। वो उतना बड़ा पैमाने को ये पूरा स्टेट में बदलाव होगा, स्टेट में ऐसा कुछ होने वाला नहीं। ये चुप एक दिन, आज एक दिन करेंगे, क्या पुकारा चिल्ला पुकारा करेंगे, दूसरे दिन जा खाएंगे, सो जाएंगे, अपना अपना धंधे पे लग जाएंगे। और आज खुद 10 बजे कॉल बुलाया था बंद का, आज बीजेपी ने प्रतिभटने का 10 बजे कॉल बुलाया था। आप लोग भी, मीडिया वाले भी मौजूद थे। इनके समाज, लिंगायत समाज के लोगों ने, लिंगायत समाज के लोगों ने, जो इनके फेवर के लोग हैं, आज सुबह 10 बजे इनके फेवर में, बसवनगौड़ा पाटिल के यत्नाल के फेवर में उनको समर्थन देने के लिए कॉल किया था। वहां पर 10 से 12 लोग भी जमा नहीं हुए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनके समाज के लोग भी इनसे खुद परेशान हैं। वो नहीं चाहते कि यत्नाल अगली बार एमएलए बन करके बीजापुर शहर में ये जो गंद मचा रखी है, वापिस से ये गंद मचाएं। उनके लोग भी परेशान हैं। मुसलमान तो हर चीज को फेस करने के लिए तैयार है। ये कोई यत्नाल हमारे लिए कोई भारी नहीं है। हम मुसलमान फिरौन, यजीद, शद्दाद ऐसे लोगों से लड़ने वाली कौम है। मुसलमान कोई ऐसे यत्नाल पत्नाल से कोई डरने वाले लोग नहीं है। लेकिन जो माहौल, जो हालात बीजापुर शहर में यत्नाल ने पैदा किए थे, वो एक फिक्र करने वाली बात है। मुसलमानों को और बीजापुर शहर के अवाम को फिक्र करने की जरूरत है कि ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, एमएलए बना करके इनको सदन में भेजना चाहिए कि नहीं। ये अवाम को सोचने वाली बात है। खास करके मैं हिंदू भाइयों से गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी मौका ना दे। इनका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद होता है कि किस तरह हिंदू मुसलमान किया जाए, किस तरह डिवाइड एंड रूल करके अपनी सत्ता को आगे बढ़ाया जाए। इससे बढ़ करके इनकी कोई सोच नहीं होती। ये इसी तर्ज पर पिछले 7-8 सालों से काम कर रहे हैं। यही इनका एक एजेंडा है, मकसद।